Good morning, students. Last day we have studied about the inequality. Today, normal algebraic inequality. Today we are going to deal with modulus inequality. Before going to modulus inequality, let's look some trigonometric inequality, which is quite important for solving maximum minimum monotonicity functions. स्पेशली फॉर द बोर्ड एस्पिरेंट्स जो ये समझते हैं इनइक्वलिटी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट दिस टॉपिक्स स्पेशली इन द कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी क्रिएट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम टू देम. नाउ हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी. Recall class 11th. If sin theta is equal to sin alpha, then its solution is theta is equal to n pi plus minus 1 to the power n alpha, where obviously n belonging to integer. Cos theta is equal to cos alpha implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha, and tan theta is equal to tan alpha is equal to theta is equal to n pi plus alpha. ये बात आपको दिमाग में रखना होगा for solving trigonometric inequality, even like board questions. And one more thing is that is the graph. How comes? I'm just revising you. Y is equal to sin x. ये सब आपने 11th में पढ़ रखा. This is the curve of sine. और when we are talking about trigonometric graphs, first of all we look for its periodicity. मैंने आपको बताया 11th क्लास में साइन का पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई होता है, यानी हर 2 पाई के बाद साइन अपने आप को रिपीट करेगा. मतलब सेम ग्राफ आपको रिपीट मीन्स व्हाट, ग्राफ सेम दिखाई देता है. That's why we only study 0 to 2 pi and then impose. This is the graph of y is equal to sin x for 0 to 2 pi. Y is equal to cos x. This is pi by 2. This is pi. This is 3 pi by 2. And this is. Recall all these things have been taught in class 11th. These three solutions must needed, and the graph of y is equal to sin x starts from 0 and shape like this. Again 0 at the pi because sin n pi is equal to 0. Pi के multiple पे sin theta is equal to 0 means theta is equal to n pi. क्लास 11th में बताया जा चुका है, यानी pi 2 pi, अगेन फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 pi, देन अगेन 4 pi. pi के मल्टीपल पे sin 0 होता है. और cos कब 0 होता है? pi by 2 के ऑड मल्टीपल पे. यू कैन सी द ग्राफ. pi by 2 पे फर्स्ट टाइम 0, अगेन 3 pi by 2, then again 5 pi by 2 and so on. Sin, cos and tan का ग्राफ एटलीस्ट पता होना चाहिए. जो बोर्ड की जनता है उनको भी पता होनी चाहिए. What about the tan? This is the graph of tan. What is this? Minus pi by 2. This is pi by 2. Why? Tan is not defined at odd multiple of pi by 2. So, and its period is pi. You look the graph only for minus pi by 2 to pi by 2. This is the graph. This is for tan. Now look some questions. How 12th question involving trigonometric. For example, someone says sin is smaller than 1 by. We know कि sin x is equal to 1 by 2. अगर ये सॉल्व करना होता तो इस 1 by 2 को हम लोग क्या लिखते हैं? साइन. अब बताइए किस अल्फा पे 1 by 2 साइन होता है? We all know this is pi by 6. Obviously, but here we don't solve equality, here inequality, so we need graph. क्योंकि ये बार बार आएगा बोर्ड के, आपके बहुत सारे टॉपिक्स में आएंगे, इसलिए इसको ग्राफिकली आप समझ ले एक बार बार ये आने वाले हैं बोर्ड के. साइन एक्स हाफ कब होता है? तो साइन एक्स हाफ होता है फर्स्ट बार, क्योंकि साइन तो पीरियड बहुत सारे वैल्यूज पे होंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ओनली फर्स्ट टाइम पाई बाई 6. सपोज दिस इज द पाई बाई, यहाँ पे साइन की वैल्यू जो है ये 1 by 2 वाला लाइन है. y इज इक्वल टू 1 by 2 वाला लाइन. तो पहली बार साइन पाई बाई 2 होता है, साइन 1 by 2 वैल्यू लेता है पाई बाई 6 पे. दूसरी बार ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, और दिस इज देखिए यहाँ से ये गैप पाई बाई 6 है, तो यहाँ से भी इक्वल गैप होगा ये, और ये क्या है? पाई. तो पाई माइनस पाई बाई 6 दैट इज 5 पाई बाई 6. ऐसे निकालते हैं. नाउ we are solving for sin x is smaller than half, means we are solving for this region. ये तो हाफ वाला लाइन है, तो इसके ये वाला पोर्शन तो ग्रेटर में आ गया, तो हमको स्मॉलर चाहिए, तो ये और we only look for 0 to 2 pi. उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं. तो ये वाला जो कर्व है हमारा, इसमें ये वाला लाइन हाफ है, हाफ के नीचे जाना है हमको, तो यहाँ से यहाँ तक मीन्स 0 से पाई बाई 6 ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही है. और कहाँ है? यूनियन 5 पाई बाई 6 कॉमा, और सेकंड वाले में तो ये ग्राफ नीचे, तो इधर तो जाना नहीं है, और हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक केवल 0 से 2 पाई में देखना होता है. तो ये 0 से 2 पाई के सॉल्यूशन है, मींस x बिलोंग्स टू. जनरली जनरल सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एस्पिरेंट्स बिकॉज इन मैक्सिमम मिनिमम मोनोटोनिसिटी और डोमेन रेंज वी नीड फॉर द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 pi 4 pi एक्सेट्रा. बट फॉर द जनरल सोल्यूशन एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, आपको हर जगह 2n पाई जोड़ना है, क्योंकि साइन जो है 2 पाई का पीरियड होता है, इसलिए हर जगह बस अगर आप 2n पाई जोड़ देते तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया. बट हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए एक सर्टेन रेंज में. तो आपने देखा कि ये sin x स्मॉलर द हाफ करना था. मैंने पहले खोजा कि sin x हाफ कहाँ है, तो वी गेट एट पाई बाई 6
and 5 pi by 6 we have sin x is equal to half, but we need smaller than half. This line is half, smaller के ये वाले region and ये वाले region. So x belongs to 0 to pi by 6 union 5 pi by 6 comma pi. Come to the next question. One more. Suppose someone says sin x greater than equal to 1 by root 2. How I will solve it? Now tell me sin x 1 by root 2 कब होता है? Obviously pi by 4 पे. But here we are not solving equality equation. We are solving inequation. So first draw the graph of the sine. This is 0, this is pi by 2, this is pi, and this is 2 pi. Or we know we have to only deal with 0 to 2 pi. 1 by 2, 1 by 2, root 2, that is pi by 4. First time we get sin x 1 by root 2 pi by 4. Second time, obviously in second quadrant we all know first quadrant and second quadrant, in both quadrants sign is positive. और obviously this graph shape like this, तो obviously एक लाइन अगर मैं खींचूं तो 2 बार तो कट करेगा ही. ये पाई बाई 4 है और जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी, और यू कैन यूज योर कास्ट रूल ऑब्वियसली साइन पाई माइनस पाई बाई 4. बट जो टेक्निकली आप देखना चाहते हैं, अगर आपको मेमोराइज नहीं करना तो आप देख सकते हैं अगर ये डिस्टेंस पाई बाई 4 है तो ये वाला डिस्टेंस भी पाई बाई 4 होगा, और ये पाई है, पाई से अगर बैकवर्ड आए पाई बाई 4, this becomes 3 pi by 4, means this is the line which is 1 by root 2 obviously. यानी ये वाला रीजन 1 by root 2 के ऊपर है, और यही हमको सॉल्व करना है बिकॉज साइन x 1 by root 2 से बड़ा होना चाहिए, which means x belongs to इक्वलिटी होल्ड करिए, so close bracket pi by 4 comma 3 pi by 4. This is the solution. If you need general solution, just add 2 and pi both sides, nothing else. But for board perspective, you need particular solution. General solution आना चाहिए, but important आपके ये बार-बार आएंगे, even board के questions में. That's why calculus is थोड़ा सा tough होता है, क्योंकि उसमें trigonometric inequation, logarithmic inequation, modulus inequation involve होता है. That's why board वाले aspirants इसको थोड़ा सा quit करना चाहते हैं, because in 11th ये डिटेल्ड में पढ़ाई नहीं होती, बट आपको समझना होगा. अगर आपको 4 मार्क्स और 6 मार्क्स जैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे कैलकुलस के, स्पेशली कैलकुलस के और फंक्शन के, तो ये सब आने चाहिए. One more question. Sometime question will be not like simpler as earlier question. Suppose we have to solve 2 sin square x minus root 3 sin x minus 3 greater than 0. Obviously, firstly it is involving like polynomial algebra. So obviously we have to factorize first. So we will factorize it. Your calculations should be very smart. It becomes Milton splitting. It becomes 2 sin x plus root 3 sin x minus root 3. Just Milton splitting. If you are uncomfortable, then sin x, put sin x is equal to t. Now we have two factors, this factor, and this is greater than equal to 0. Use your basic concepts. Two factors greater than equal to 0. इस वाले रेंज को जरा ध्यान से देखें. We all know sin x oscillates between -1 to 1. It means sin x की जो वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1, इसी के बीच में साइन ऑसिलेट करता है. वी ऑल नो. इस एक्सप्रेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन तो ऑलवेज निगेटिव है, बिकॉज ये मैक्सिमम भी हो जाए तो ये 1 होगा. 1 माइनस रूट 3 दैट इज 1.7 अप्रॉक्स. इट मीन्स ये ऑलवेज निगेटिव है. अगर ये ऑलवेज निगेटिव है और इनइक्वलिटी सॉल्व कर रहे हैं, या तो आप ये सोचिए इसको ट्रांसफर कर दें तो इनइक्वलिटी रिवर्स कर जाएगा, या आप ये समझिए एक एक्सप्रेशन निगेटिव है और ये और एक्सप्रेशन है और ओवरऑल पॉजिटिव होना है, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी अ निगेटिव क्वांटिटी. इट मीन्स 2 sin x plus root 3 is smaller than 0. It means sin x is smaller than minus root 3 by 2. This is the very simple as earlier questions. Now think where sin x equals minus root 3 by 2. Obviously first second quadrant में होगा नहीं, आपको you have to search in the third and fourth quadrant. Now question is yours, as simple as previous one. इसको आप solve कर सकते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी जो बोर्ड तक में इन्वॉल्व होगा और जेई मेन में इन्वॉल्व होगा, वो ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे. आपको फैक्टराइज करने के बाद साइन का ग्राफ बनाना है, आपको क्रिटिकल वैल्यू टाइप खोजना है, और अगर स्मॉलर देन है तो नीचे वाला रीजन सेट करना, अगर ग्रेटर देन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर वाले रीजन सेट करना, और बस x बिलोंग्स टू लिख देना आपको. जैसे मैं इसके लिए बात बताऊं, अगर संबंध, तो ये ग्राफ है, अगर जिनसे दिक्कत है आप एक बार देख ले, ये साइन का ग्राफ समझ लो. ऑब्वियसली इस वाले रीजन तो पॉजिटिव रीजन है, इसमें तो मिलेगा नहीं, यही मिलेगा, बिकॉज ये पाई से ये 2 पाई है, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट नीचे रहा. अब इसको कैसे खोजते हैं ये इंपॉर्टेंट, एक बार ध्यान से समझ ले. अगर ये निगेटिव ना होता, टेक्निकली समझ ले, क्योंकि जो पढ़ना था उन्हें आपने 11 में पढ़ा, टेक्निकली समझ लिए. अगर ये माइनस ना होता तो आप कहते हैं कि इट बिकम्स पाई बाई 3, बट ये पाई बाई 3 तो हुआ नहीं, क्योंकि माइनस लग गया, मतलब नीचे जाना है हम लोग को, आगे जाना है पाई के. तो साइन आप ऐसे भी कर सकते हैं पाई बाई 3, और चूंकि पाई से आगे जाना है तो प्लस ही कर रहे होंगे,
तो साइन पाई प्लस पाई बाई 3 दैट इज 4 पाई बाई 3 एंड एक बार और यहाँ मिलेगा जब यहाँ हमारे पास मिले और अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो एक यहाँ भी मिलेगा जो कि 2 पाई से कम होगा तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3। अब क्या करना है आपको, ये स्मॉलर देन जाना, स्मॉलर देन का मतलब नीचे ये वाले रीजन यानी साइन x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 4 पाई बाई 3 कॉमा 5 पाई बाई 3। ध्यान से इसको समझ लिया। फॉर बोर्ड और जेई मेन इट इज मच बेटर, दैट इज द बाउंड्री पॉइंट, इससे ऊपर बोर्ड और जेई मेन में नहीं जाए। वन क्वेश्चन फॉर द cos x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, जस्ट प्लॉट द ग्राफ, cos के ग्राफ ऐसे प्लॉट किया मैंने ग्राफ। cos हाफ कहाँ होता है तो आपको पता है cos हाफ होगा पाई बाई 3, लेटस ये तो हमारा पाई बाई 2 है तो उससे पहले यहाँ होगा पाई बाई 3, ये पाई बाई 3। बट अगर ये लाइन अगर हम खींचे तो 2 बार कट करेगा और ये हमारा है 2 पाई, तो इसका मतलब ये वाला लाइन कौन सा है, ये वाला हाफ वाली लाइन है और हमको जाना है कहाँ ग्रेटर, तो ये वाला रीजन और एक ये वाला रीजन, तो ये पता करना होगा। अभी मैंने कहा कि इक्वी डिस्टेंस का आप लगा सकते हैं, 2 पाई से पाई बाई 3 पहले आ जाइए विच मीन्स 2 पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 5 पाई बाई 3। तो लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखिए ये वाले में ग्रेटर है और यहाँ से यहाँ तक मीन्स x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 3 एंड एक और सोल्यूशन हमारे इस रीजन में हमारे पास सोल्यूशन है दैट इज 5 पाई बाई 3 टू 2 पाई। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। इफ यू नीड particular solution, if you need general, add 2n pi because cos is also a periodic of 2 pi. Similarly, like tan you can solve. These are the basic inequality which you will see in board or JEE main questions, especially in calculus. Now start modulus function or also termed as absolute value. This topic has also been taught in 11th class, but once again this is the real number line, this is 0, rightward numbers are positive, leftward numbers are negative, we all know. Suppose this is 1, this is 2, अगर 2 यूनिट अगर राइट में गए और इफ गेट अ रियल नंबर तो दिस इज कॉल्ड 2। सिमिलरली उतने ही डिस्टेंस अगर आप लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर तो 2 ही मिलता, सिंस दिस नंबर इज इन लेफ्ट सो इट इज टर्म्ड एज -2 मीन्स माइनस ओनली शोज कि ये लेफ्ट में है और प्लस तो रिटर्न ऐसे भी नहीं होता तो हम 2 बोलते हैं। सिमिलरली अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर हमको -3 भी मिलेगा। वैल्यू तो इस नंबर यहाँ लेफ्ट में 3 यूनिट जाने के बाद जो नंबर मिलेगी उसकी वैल्यू तो 3 ही है, बट हम लोग माइनस इसलिए बताते हैं कि ये नंबर लेफ्ट में है, दैट्स वाई। मॉडुलस यही करता है, मॉडुलस निगेटिव पार्शियलिटी नहीं करता नंबर्स के बीच में। क्या करता है मॉडुलस में बताऊँ आपको, मैं पूछूं रियल नंबर लाइन पे फाइंड नंबर्स whose magnitude is 7, you will say sir 2 times once here and 1 time here, ये और ये, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड 7 है और इसका भी मैग्नीट्यूड की केवल बात करें तो कितना ये 7 है। सेम काम आपका मॉडुलस करता है। ये एक बॉक्स है मॉडुलस, ये बॉक्स अगर कोई पूछे आपसे मॉड 7 मतलब आपसे पूछ रहा है इस बॉक्स के अंदर नंबर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है 7। अच्छा, कोई आपसे पूछे मॉड -7 या एब्सोल्यूट वैल्यू -7, इसका मतलब आपको केवल एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है 7। यही करता है मॉड आपका। मीन्स अगर कोई आपसे पूछे मॉड x इज इक्वल टू 2 मतलब वो कौन सा नंबर जिसका मैग्नीट्यूड एक नॉन नंबर है जिसका मॉड लेने पे वी गेट 2, इसका मतलब ये हुआ कि ये x 2 हो जाए फिर मॉड 2 होगा या x की वैल्यू -2, तो ये मॉड करेगा। आप प्लीज समझे, मॉड के अंदर प्लस वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव हो, जब हम मॉड ले लेंगे किसी नंबर का वी गेट पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल इफ समवन आस्क -5 mod it becomes 5, someone says mod under -e it becomes e, mod under -3 it becomes 3। यानी ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कोई भी नंबर इन करे उसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू की बात करें उसकी आफ्टर और वैल्यू की बात करें, अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, पर इसकी जो वैल्यू है जो निकल के आएगा उस, ये जादूगर है जस्ट लाइक ए मैजिशियन, ये अंदर प्लस गया अंदर माइनस जाए पर इसकी जो आउटपुट आएगी ये प्लस, दैट्स व्हाई ये आप कह सकते हैं इट्स अ मैजिशियन बॉक्स और मैजिक बॉक्स। टेक्निकली पहले समझ, someone says mod x -1 is equal to 4, आपसे पूछा, आप सिंपली समझिए कोई क्वांट, इसको एक कुछ भी मान सकते हैं आप मन में थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए t, आप बताए mod अंडर t इज इक्वल टू 4, तो ऑब्वियसली आप t के बारे में क्या सोच सकते हैं, ये या तो +4 होगा या तो -4 होगा, बट आप यहाँ तो t है नहीं, यू आर सॉल्विंग फॉर द x और इट इज x -1, मतलब आप ये कह रहे हैं एक नंबर से जब -1 किया गया, एक नंबर से 1 घटाया गया तो आपके पास 4 मिला, तो वो नंबर क्या रहा होगा, घटाने के बाद 4 मिल रहा है, इसका मतलब x क्या रहा होगा 5, यहाँ पर x 5 होगा, तब तो 1 माइनस करेंगे तो 4, मॉड अंडर 4 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4। अच्छा, एक तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, और -4 भी आ सकता है, इसके लिए x की वैल्यू को क्या रख सकते हैं, थिंक अबाउट इट, आपको -4, क्योंकि मॉड के अंदर -4 हो या +4 हो आफ्टर ऑल वैल्यू
4 आएगी। तो मैंने कहा कि ये वाली पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू, ये जो एक्सप्रेशन है x-1, इसकी वैल्यू 4 और -4 है। तो जब आप जानते हैं x-1 अगर 4 है तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 हो जाएगा, और x-1 अगर एक बार -4 है तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, -3। अब पुट करके देख लें, -3 -1 बिकम्स -4 और मॉड अंडर -4 बिकम। तो आप टेक्निकली ऐसे क्वेश्चन सिंगल मॉड को आपको सॉल्व करने के लिए पूरा जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे स्मार्टली। और ऑब्वियसली मॉड अंडर समथिंग अगर 10 हो रहा है तो ये पूरे की वैल्यू या तो 10 रही होगी या तो -10 होगी। ऑब्वियसली इफ वी गो फॉर 10 तो ऑब्वियसली ये वाले x की बात कर रहे हैं, ये 12 होगा बिकॉज 12 से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर ही 10 मिलता है। अच्छा, अगर हम -10 की बात करते हैं तो यहाँ वाले नंबर को क्या होना पड़ेगा, -8, क्योंकि -8 एंड -2 -10 एंड मॉड अंडर -10 व्हाट 10। तो सिंगल मॉड के जो इक्वलिटी के क्वेश्चन है जो कि आपने पहले कर रखा है, आप इजिली डील कर सकते। कम टू द पॉइंट नाउ, अब हम डिफाइन कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन को। y इज इक्वल टू मॉड x। ऑब्वियसली ये y हमेशा पॉजिटिव होगा। मैंने अभी कहा कि इफ अ क्वांटिटी इज इन मॉड एंड y इज अ क्वांटिटी विच इज मॉड अंडर x ना, तो y हमेशा ही पॉजिटिव होगा, बस मॉड x हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब अंदर तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। जैसे मॉड अंडर मैंने -7 कहा तो आपने कहा कि इसकी वैल्यू 7 होगी। एक तो आप ये कह सकते हैं ये मैजिक बॉक्स है, दैट्स वाई ये -7 बन गया। पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि हमको वैल्यू पॉजिटिव लेना है, बट ये -7 है तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा -1 देते हैं, मतलब -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये क्या बन जाता है हमारे पास 7। सपोज मॉड अंडर -10 होता तो ये 10 है, पर हाउ कम्स ये -10 है और हमें पॉजिटिव बनाना है तो मैं माइनस में मल्टीप्लाई। तो जब पॉजिटिव रहता है तब तो कुछ करना की जरूरत नहीं होती, बट जब निगेटिव होता है तो उस केस में हमको माइनस लगाकर मॉड को ओपन करना होता है ताकि और आफ्टर ऑल ये पॉजिटिव बन जाए। लुक, अब ये x के बारे में नहीं पता ये x पॉजिटिव है कि निगेटिव है, नहीं पता, तो हमको केसेस बनाने होंगे कि अगर x पॉजिटिव है मीन्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब लाइक दिस, जैसे मॉड अंडर 7 आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपने 7 ओपन करा खुला। तो अगर हम ये मान ले x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इस केस में पता है ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो सिंपली ओपन कर दें आप, सिंपल हो गया। इफ because we don't know x is positive or negative, so we have the two cases, x greater than equal to 0 that is positive। तो पॉजिटिव के केसेस में तो सिंपली मॉड हम लोग खोल देते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। बट इन द केस इफ x इज निगेटिव, तो अगर x निगेटिव है, मॉड से बाहर आना चाहता है तो एक तो एक्स्ट्रा माइनस आपको लगाना पड़ेगा। अंडरस्टूड नाउ, यानी व्हेन वी हैव मॉडुलस we define for the two cases, for the positive if the quantity is unknown, if the quantity is known तो we can write simply। बट क्या लिखते कैसे हैं, मॉड अंडर 7 डायरेक्टली 7, मॉड अंडर -7 आपको एक एक्स्ट्रा माइनस हमको लगाना पड़ेगा सो दैट क्वांटिटी वुड बी पॉजिटिव। तो इफ मॉड के अंदर अगर अननोन है तो दो केसेज हमको करने पड़ेंगे, वेदर इट इज पॉजिटिव वेदर इट इज निगेटिव। इफ इट इज पॉजिटिव ओपन इट एज यूजुअल, इफ इट इज निगेटिव impose extra minus so that quantity becomes minus because ये कंडीशन माइनस का, एक एक्स्ट्रा माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मॉड्स केवल पॉजिटिव ही आ सकता है। अब इस बातों को ग्राफिकली देखिए, y इज इक्वल टू मॉड x के दो केसेज हैं। आपने देखा कि ये x भी होगा फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये -x भी होगा फॉर x स्मॉलर देन 0। अब इस बात को रीराइट कर लेते हैं ऐसे, मॉड हटा देते हैं, मॉड को ओपन कर लिया ऐसे, ये x होगा जब x पॉजिटिव होगा और ये -x होगा जब x निगेटिव होगा। समझेंगे इस बात, मींस अब ग्राफ देखते हैं। y की वैल्यू होती है x, कब होती है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। x ग्रेटर देन 0 होने का मतलब इस साइड में ना, तो जब x यानी फर्स्ट क्वार्ट, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है उस समय y किसके बराबर होता है, x के बराबर। और वी बेटर नो y बराबर x इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग 45 डिग्री इंक्लाइन विद द x एक्सिस ना, स्ट्रेट लाइन हम लोग ने पढ़ रखा है 11th, ये वाला, यानी ये y बराबर x है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बट केसेस बदलने पे x स्मॉलर देन 0, x स्मॉलर देन 0 में दिस साइड, इस वाले साइड में, इस वाले साइड में y की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, अब यू कैन से -x। y बराबर -x इज आल्सो a straight line passing through origin having 135 degree inclined। This is the graph of mod x। V शेप का होता है ये, दिख रहा है। पॉजिटिव के लिए ये इसके सुख के दिन है और ये इसके दुख के दिन है। दैट इज एक सर्टेन वैल्यू होगी जहां से ग्राफ V शेप लेगा, दैट इज आप इसको एज पॉइंट कह सकते हैं, शार्प कॉर्नर कह सकते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको बहुत सारी। पहले हम डिफाइन कर ले, हम जानते हैं
रफली में आप लिख ले मॉड एक्स अगर है हमारे पास, नॉट मॉड एनी एक्सप्रेशन, मॉड एनी एक्सप्रेशन। तो मैंने कहा कि दो केसेज में खोलेंगे अगर एक्सप्रेशन नहीं जानते हम लोग। अगर एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव है तो एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे। इफ एक्सप्रेशन इज निगेटिव देन वी हैव टू राइट माइनस टाइम ऑफ द एक्सप्रेशन टू मेक इट पॉजिटिव। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इसको। ये एक्सप्रेशन है x माइनस वन। इन्हें हम जानते हैं x माइनस वन अगर एक एक्सप्रेशन है तो इसकी क्रिटिकल वैल्यू होगी। क्या है किसका वैल्यू? इसकी 1। इसका मतलब अगर x 1 से बड़ा है तो उस समय ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। मीन्स 1 से बड़ा अगर है, मानते हमारे पास केसेज, क्योंकि हर एक्सप्रेशन का एक क्रिटिकल वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं इस बात को। तो इसकी क्रिटिकल, इस एक्सप्रेशन की क्रिटिकल वैल्यू 1 है, यानी 1 से राइट साइड में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। डाल के भी चेक कर सकते हैं। तो अब जब एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है तो हम एज इट इज ओपन करते हैं। लुक है, तो एज इट इज ओपन करा। बट इफ x स्मॉलर देन 1, हम जानते हैं अगर 1 से अगर छोटा हो जाएगा तो एक्सप्रेशन माइनस लगा के हम लोग खोलते हैं, जानते हैं हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? माइनस x माइनस 1, क्योंकि माइनस लगाना पड़ रहा है, क्योंकि x स्मॉलर देन जब 1 होगा तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव होगा। और मॉड से निगेटिव अगर कोई क्वांटिटी है, पॉजिटिव बनाने के लिए एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं। अब इसको ऐसे लिख दें, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 के दो पार्ट हुए। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन बनेगा x माइनस 1, और x स्मॉलर देन 1 के लिए ग्राफ हमारा बनेगा, ये माइनस है, इसको रीराइट कर लीजिए, ये 1 माइनस x। अब हम ग्राफ बना सकते हैं। ऑब्वियसली when you have to form the graph, don't look for the intermediate, क्योंकि इसको आपने ब्रेक डाउन कर रखा है। y is equal to x minus 1, but condition is that x greater than equal to 1. सपोज दिस इज 1, तो जब 1 के आप राइट साइड में रहते हैं इधर, तो उस केस में ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू x माइनस 1। बना दीजिए x माइनस 1 का ग्राफ, ऐसे बनेगा। लेकिन इधर भी बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इधर हमको जाना नहीं है, क्योंकि इधर तो x से स्मॉलर देन 1 नहीं करना। x से स्मॉलर देन 1 के केस में हमारा ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 1 माइनस x का ग्राफ, निगेटिव स्लोप वाला ग्राफ। दिस पॉइंट विल बी, आप कर सकते हैं, ग्राफ खुद से बना सकते हैं। इधर बनता है स्ट्रेट लाइन, पर हमको 1 जब x स्मॉलर देन 1 है तो केवल इधर रहना, ये वाला ग्राफ बनेगा 1 माइनस x, और x ग्रेटर देन 1 में ये ग्राफ। देखिए अगेन ग्राफ is of V shape, sharp corner is at critical point। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या था हमारे पास? इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 था, यानी मॉड के एक्सप्रेशन के जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे शार्प कॉर्नर्स बनते हैं, ध्यान दें। तो यहाँ भी आपने देखा इट्स ऑल अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू। y इज इक्वल टू मॉड एनी अननोन क्वांटिटी। तो इस क्वांटिटी को एज इट इज क्वांटिटी रहने देंगे अगर इसके क्रिटिकल वैल्यू से अगर हम बड़े हैं, और ये माइनस टाइम दी क्वांटिटी होगा अगर हम इसके क्रिटिकल वैल्यू से छोटे हो गए। यही काम करना आपको हमेशा, मॉड जब भी ओपन करना है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 लिखना है, x प्लस 3 लिखना है, कुछ नहीं करना आपको। इसके क्रिटिकल वैल्यू बस लिख लेना। इसके इस एक्सप्रेशन की क्रिटिकल वैल्यू क्या है? माइनस 3। केसेज बना लेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 पे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा। जब इफ द क्वांटिटी इज पॉजिटिव जस्ट रीराइट इट। इफ x स्मॉलर देन माइनस 3 इट मींस this quantity becomes negative, पर mod only give positive, so extra minus हम यूज करते हैं। If you have to form the graph, you can form, rewrite x plus 3 लाइन बनेगा जब x greater than equal to minus 3 होगा, और ये ग्राफ बनेगा minus x minus 3 when x is smaller than minus 3 होगा। अब ग्राफ बना सकते हैं। Here suppose this is minus 3, this is, अब बना सकते, बस इंटरमीडिएट पोजीशन नहीं देखना आपको। यहाँ ग्राफ बनाने के केस में y वर्सेज x बनाते हैं, सिंपली y is equal to x plus 3, बिल्कुल क्वाइट इजी ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। एंड कब x greater than equal to minus 2, ये वाला। and for x smaller than minus 3 this is this graph, negative slope आप देख सकते हैं, माइनस लगा हुआ है x के। again we have a sharp corner that is chonch at minus 3, or what is the minus 3? minus 3 is the critical value of this expression। suppose then we have given y is equal to mod x minus 1 plus mod x minus 2। पहले ग्राफ की बात कर लेते, ग्राफ कैसे करें। now we have two mods, सबके अपने अपने क्रिटिकल वैल्यू, इसके क्रिटिकल वैल्यू 1, इसके क्रिटिकल वैल्यू 2। मींस 3 पार्ट्स में आपको देखने हैं। जब x 2 से बड़ा होगा, जब x हमारा 1 से 2 के बीच में होगा, व्हेन x इज स्मॉलर देन 1। 3 केसेस हमारे पास। केस 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू, जब x 2 से बड़ा है तो ये एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव होगा, और जब ये मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होती है तो एज इट इज लिखते हैं, जैसे मॉड 7 7 लिखते हैं तो x माइनस, और इसकी क्रिटिकल वैल्यू तो बहुत छोटी है तो ये तो पॉजिटिव होगा ही, तो इसको लिख देंगे x माइनस। क्या हो जाएगा ये? 2x माइनस 3। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडुलस। आई हैव टोल्ड यू if y is equal to mod x, then when x greater than equal to 0, then this x can be written as simply x, and if x is smaller than 0 then we have to put extra minus. Why? Because modulus quantity gives us only positive. If this quantity is positive means x greater than equal to 0, in this case we can open the modulus as x. As I have told, mod 7 is equal to 7, but when we have to mod minus 7 it becomes 7. How?
It is -7. To put it positive, we have to impose extra minus. In the very same, if y is equal to modulus of any expression, then if condition is, if expression is greater than equal to 0, then we can open the modulus like as it is. And if expression is negative, to make it positive, we have to put extra negative. This is the theory, normal theory of the modulus. फॉर एग्जाम्पल मॉड x माइनस 2, कोई भी एक्सप्रेशन पॉजिटिव कब होता है? अपने क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी वैल्यूज पे पॉजिटिव. तो वी हैव टू राइट इट व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 2 इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल वैल्यू. तो व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन x माइनस 2 इज पॉजिटिव, एंड व्हेन द पॉजिटिव क्वांटिटी इन द मॉड, देन वी कैन राइट इट एज यूजुअल. सेकेंड केस, इफ x इज स्मॉलर देन 2, x is smaller than 2 पे ये x minus 2 नेगेटिव है. टू मेक इट पॉजिटिव वी हैव टू पुट, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस. इन लास्ट क्लास इतनी बातें हुई थी. फिर मैंने आपको ग्राफ बताया था y is equal to mod x. इट इज x if x greater than 0 equal to obviously, और x smaller than 0 पे ये -6. तो मैंने कहा था ग्राफ को आप देख लो भैया, x greater than equal to 0 means ये ओरिजिन का ये इस वाले रीजन में ग्राफ इज बिटवीन y versus x. दिस इज, एंड इफ x smaller than 0 means लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिन, देन y is equal to -6. मैंने कहा था कि मॉड का ग्राफ हमेशा शार्प कॉर्नर लेता है अपने क्रिटिकल वैल्यू पे. ऑब्वियसली इसकी क्रिटिकल वैल्यू कितनी है? 0. अगेन आई एम जस्ट रिकॉलिंग x minus 1, इट बिकम x minus 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बिकॉज 1 इज क्रिटिकल वैल्यू ना. एंड इफ x स्मॉलर देन 1, पुट इट एक्स्ट्रा माइनस अगर हम पुट करें, इट बिकम्स 1 minus x. ग्राफ विल बी लाइक दिस. लुक, सपोज दिस इज y टोटल क्वांटिटी. तो y इज इक्वल टू x minus 1 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी 1 on 1 के आफ्टरवर्ड्स, here is 1, सपोज 1 के बाद ग्राफ है y is equal to x minus 1. y is equal to x minus 1 का ग्राफ ऐसे, और ऑब्वियसली ऐसे होगा, पर इधर तो जाना नहीं हमको, बिकॉज x is greater than 1. And if x is smaller than 1, then y is equal to 1 minus x. 1 minus x का भी आपने ग्राफ सीखा है 9th, 10th, 11th में, and this will be obviously. Again, you can see this is the graph of mod x minus 1. Here again a sharp corner at 1. And what is the 1? 1 is the critical value. I have also told you, if we have suppose 2 or 3 model, nothing we have to do. केसेस बस बढ़ जाएंगे. फर्स्ट केस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सबसे बड़ी क्रिटिकल वैल्यू 2 है. x ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ये भी पॉजिटिव से ओपन करेंगे, इसको भी पॉजिटिव से ओपन करेंगे. y इज इक्वल टू कितना होगा? ये 2x minus 3. व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2 में सिंस यू आर लेसर देन 2, ये निगेटिव से खुलेगा. तो y इज इक्वल टू minus x minus 2. सिंस आप 1 से बड़े हैं, यू आर ग्रेटर देन 1, देन दिस मॉडुलस रीओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे. देन द थर्ड केसेस इज x स्मॉलर देन 1. इस केसेस में ये भी निगेटिव से, ये भी निगेटिव से, और इसके ग्राफ मैंने रफली आपको बताया था अपने लास्ट क्लास में, मैंने इस तरह का ग्राफ. ओके, ये बातें आपको इवन बोर्ड के क्वेश्चंस में यूज होंगे और आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ कम टू हाउ टू सॉल्व. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बोर्ड्स में ग्राफ बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत, लेकिन सॉल्विंग मॉडुलस इक्वेशन और इनइक्वालिटीज तो बार बार आपके फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा, मिनिमा, मोनोटोनिसिटी, सारे ऑलमोस्ट हर टॉपिक में, स्पेशली फंक्शन एंड कैलकुलस. सपोज मॉड x इज इक्वल टू 2. एक तो टेक्निकल मैंने तरीका बताया था कि किस एक नॉन क्वांटिटी का मॉड लेने पे 2 आ रहा है, किस नंबर का मॉड 2 होता है. तो मैंने बताया था 2 का भी मॉड 2 और -2. ये तो टेक्निकल तरीका है. अगर सिंगल मॉड है यू कैन सॉल्व लाइक दिस, बिकॉज मॉड 2 भी आपको 2 देगा और मॉड -2 भी आपको 2 देगा. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव 2 और 3 मॉड्स? फॉर एग्जांपल, इफ आई से mod x minus 1 plus mod x minus 2 plus mod x is equal to something, let us say alpha. How can you solve? You cannot solve it technically. You can, but it's a gradual process. So what is the real process? It's all about the critical value. If mod x is equal to, let's start 2. What is the expression x? इसकी क्रिटिकल वैल्यू, x का क्रिटिकल वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियसली 0. 0 इज द क्रिटिकल वैल्यू. 0 पे x 0 हो जाएगा. केसेस इज व्हेन x greater than equal to 0. फर्स्ट केस, when x greater than equal to 0, it means you are saying this quantity is positive, and if this quantity is positive, then open is simply, जैसे आपने mod 7 को आप simply 7 खोल देते हैं विदाउट कुछ किए. तो x is equal to 2. तो एक सॉल्यूशन आपका x is equal to 2 है. और अगेन you have to look carefully for the case. What is your case? x greater than equal to 0 means आपने केस पहले ही एज्यूम कर रखा है x आपका पॉजिटिव होना चाहिए और है यहाँ पर. so this is one of the answers. Second case, because we don't know about the x, so it may be negative, x smaller than 0. In that case we are saying कि ये वाला जो x है, ये वाला x ये निगेटिव है,
और मॉड में अगर कोई क्वांटिटी निगेटिव है तो कैसे ओपन करते हैं, एक्स्ट्रा माइनस लगा, देन x इज इक्वल टू -2। केस के साथ आपका आंसर हमेशा मैच करना चाहिए। यू आर सेइंग कि x is smaller than 0 and here it comes x is equal to -2 which is very agree, x smaller than 0 होना चाहिए। one minute और है, that's why our answer is x is equal to 2 and x is equal to -2। ये सिंपली ऐसे हम इसको नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते थे, बट यहाँ पर जब मॉड्स 1 2 3 ऐसे क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी ना, इसीलिए मैंने यहाँ पर ही करके दिखाया। पर सिंगल मॉड में इसकी जरूरत नहीं, ये सब 11th 12th और 9th 10th और 11th में आपने पढ़ा। व्हाट एवर द डबल मॉड, नथिंग, it's all about the critical value। Suppose mod x minus 1 plus mod x minus 2 is equal to, suppose it is 7 and we have to solve for x obviously। इस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल वैल्यू क्या है, 2। इस एक्सप्रेशन क्रिटिकल, वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू, क्योंकि कोई एक्सप्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्राइटेरिया कौन लेता है, क्रिटिकल वैल्यू। इसकी क्रिटिकल वैल्यू 1। सो वी हैव द 3 केसेज, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फर्स्ट केसेज। x ग्रेटर देन इक्वल टू पे ये वाली एक्सप्रेशन तो पॉजिटिव होगी, तो इसको एज इट इज खोल दो। और ये तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि इसकी क्रिटिकल वैल्यू तो बहुत छोटी है, हम 2 से बड़े भी बात कर रहे हैं। नाउ सॉल्व, 2x minus 3 is equal to 7, this implies 2x is equal to 10, this implies x is equal to 5। what is your answer, x is equal to 5, but when x greater than equal to 2। मैंने अज्यूम कर रखा था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और ये आया भी, x इज इक्वल टू 5, ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। सो दिस इज वन ऑफ आंसर्स, वन ऑफ द वैल्यूज ऑफ इट। सेकंड केस, व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2। देखिए यहाँ पर 2 पे इक्वलिटी होल्ड करा है, तो यहाँ पर 1 पे करा है। नाउ which means we are smaller than 2 but greater than 1। smaller than 2 पे ये जो एक्सप्रेशन x minus 2 ये नेगेटिव से, इसको नेगेटिव से खोल दे, बट ये तो अभी भी पॉजिटिव से होगा क्योंकि इसकी क्रिटिकल वैल्यू 1 है और 1 से तो बड़े हम लोग। सॉल्व करते हैं, here x cancel out, it becomes 1। 1 is equal to 7 होता है क्या कभी, कभी नहीं। इट मीन्स इस केस में हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कोई आंसर ही नहीं है, x की इस रेंज में कोई वैल्यूज नहीं होंगी, तो ठीक है। नेक्स्ट केस, आवर द लास्ट केस, when x is smaller than 1। when x is smaller than 1, ये भी एक्सप्रेशन निगेटिव से, ये भी निगेटिव से, दोनों को निगेटिव से, -x it becomes -2x। it's the calculation, do yourself। then x is equal to 4 and -2, and your case was x is smaller than 1 and obviously it is smaller than 1, so we have the two values of x is equal to 5 and x is equal to -2। you can check now, we are going to check, पुट करें इसमें, चेक कर रहे हैं हम लोग। 5 डालें, 5 डालेंगे, x इट्स 4, 5 यहाँ x की जगह पे 5 डाल रहे हैं, 4 मॉड अंडर 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 प्लस यहाँ पे डाल रहे हैं 5, ये कितना 5 minus 2 3, मॉड अंडर 3 कितना होगा 3, इट बिकम 7। यू कैन सॉल्व जब -2, चेक -2 यहाँ पर x की जगह पे डाल रहे हैं, -2 -1 -3, मॉड अंडर -3 हाउ मच 3, -2 डालें, -2 -4 एंड मॉड -4 4। सो इफ वी हैव 3 मॉड, ऑब्वियसली केसेस बढ़ जाएंगे, बाकी सॉल्व करने का तरीका वही हमारे पास, और बहुत सारे केसेस में आंसर नहीं आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं इस केसेस में इनवैलिड हो गया आपका, नॉट एग्जिस्ट बिकॉज 1 बराबर 7 तो होता है नहीं इस केस में, इसका मतलब इस केस में कोई आंसर भी नहीं है। वन इंपॉर्टेंट थिंग, बाई ग्राफिकल मेथड, दिस इज द जूनियर क्लासेस मेथड, यू कैन अप्लाई इट 9th 10th 11th, but when we have to solve, suppose f of x is equal to g of x, look carefully, when we have to solve f of x is equal to g, तो geometrically it means finding intersection of y is equal to f of x and y is equal to g of x। obviously suppose y is equal to x square and y is equal to 1 and we have to find what x square बराबर 1, तो simply one can say, ये तो obvious है, x is equal to +1 and -1। I am saying solve it by like this, x square is equal to 1, this is f of x, this is g of x। geometrically we have to plot the graph of y is equal to x square and y is equal to 1, plot the graph y is equal to x square, you all know 10th क्लास में लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एंड ये हमारा क्या, एंड y is equal to 1, मैंने इजी एग्जांपल से आपको समझाया कि इफ वी हैव टू सॉल्व f of x is equal to g of x, आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, बट कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होंगी। f of x is equal to g of x means फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व्स, मींस आप प्लॉट कर लो y is equal to f of x, आप प्लॉट कर लो y is equal to g of x, जितने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितनी बार ये इंटरसेक्ट करेगा, देखिए एक बार यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक बार, इट मींस दिस इक्वेशन हैव टू सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये समझनी होगी, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैलकुलस में, स्पेशली डिफरेंशियबिलिटी में इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करेंगे। वन मोर एग्जांपल, सपोज आई एम सेइंग कि y is equal to solve
Find number of solutions of mod x minus 1 is equal to minus 2. One can say, what is the need of solving? Obviously no solution, because it is mod quantity, it is always positive, but it is equate with minus quantity, so never. But I am trying to make you concept of graph. mod अंडर x minus 1 का ग्राफ मैंने बताया था, mod अंडर x minus 1 का ग्राफ ये रहा. ओके, क्रिटिकल वैल्यू से मुड़ जाएगा अपने. और ये क्या है? y is equal to minus 2, y is equal to minus. Has these two graphs intersected at any point? You can say none point, so no solution. Means when we have to solve f of x is equal to g of x, और स्पेशली ये कब इस्तेमाल करेंगे? फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस निकालना इससे उतना मुश्किल है थोड़ा, पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो इजीली बता सकते हैं. मतलब f of x is equal to g of x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब इसके ग्राफ और इसके ग्राफ कितने कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं. जितने कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे मींस उतने पॉइंट्स इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होता है. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आना चाहिए. सो फॉर फाइंडिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ f of x is equal to g of x, just find number of common points, and geometrically common points means intersecting points. It means आपको इसका ग्राफ और इसका ग्राफ बनाए और देखिए कितने जगह एक दूसरे को कट किया है. The number of intersecting point is equal to number of the solutions of this. We were talking about how to solve equality. तो मैंने कहा आपको कि critical value. Now जो हमारे लिए सबसे important है, modulus inequality. समझेंगे. Suppose we have to solve mod x greater than equal to. मैंने कहा कि सारा खेल क्रिटिकल वैल्यू पे और इज ऑल अबाउट द क्रिटिकल वैल्यू. क्या है इस एक्सप्रेशन की क्रिटिकल वैल्यू? ऑब्वियसली जीरो इज द क्रिटिकल वैल्यू. मींस केसेस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, सो वी कैन राइट x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. दिस इज सॉल्यूशन. एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू मींस मैंने लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन में पढ़ा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मींस व्हाट? 2 to infinity. दिस इज our cases was ki x greater than equal to 0 and this satisfies, so this is one of the solutions. Second case, when x is smaller than 0, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी तो निगेटिव भी हो सकती है, बट जब अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है तो मॉड कैसे ओपन करेंगे? एक्स्ट्रा माइनस लगा के, सो दैट पॉजिटिव है. ये कैसे होगा? माइनस ट्रांसफर करेंगे. माइनस ट्रांसफर करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाता है, पता है, मींस माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इट बिकम्स x belong to minus infinity to minus. What was our case? X is smaller than 0 means negative, and obviously it is negative, so this is also the solution. So final solution is this and this both. When we have two solutions in set collection, then we can write final solution x belongs to minus infinity to minus 2 union, because both are the solution, union 2 to infinity. When someone says x greater, next example, look carefully technically, it was 2 ना, so final solution. ठीक है, आप इस चीज को देखें, पर अब सिंस आप यू आर इन 12 तो आपको टेक्निकली जल्दी सॉल्व करना होगा मॉडुलस. मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था. फाइनल सॉल्यूशन क्या है? x इस एक्सप्रेशन के निगेटिव में इधर और इसके पॉजिटिव में इधर. So now tell me the answer. Mod x greater than equal to 3, इस एक्सप्रेशन इस क्वांटिटी के निगेटिव से इधर और इसके पॉजिटिव से इधर, that is x belongs to minus infinity to minus 3 union 3 to infinity. Second cases, if mod x is smaller than equal to 2, वो greater than equal to, how to? Again critical value, x इसके critical value 0 है, x greater than equal to 0 पे mod पॉजिटिव खुलेगा. बट केसेस का ध्यान रखना बहुत. यू आर सेइंग कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो x एज इट इज खोला. तो इसके सॉल्यूशन आ रहा है x स्मॉलर देन इक्वल टू 2. इससे x स्मॉलर देन इक्वल टू का मतलब ये रहा 2 से लेकर पूरा निगेटिव, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी तक. बट माई केसेस वॉज कि x जो है पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वहीं तक हम ले सकते हैं. केस को सेटिस्फाई होना होगा हर हाल में आपके सॉल्यूशन के साथ. मीन्स हम 0 से उधर नहीं जा सकते क्योंकि उसी केस पे ये मोहताज है. तो इट मीन्स वी हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, क्योंकि केस हमेशा ही सेटिस्फाई, योर केस मस्ट बी सेटिस्फाइड ऑलवेज. ऑल्दो योर आंसर लुक्स x smaller than equal to 2, but how it comes? Due to this. So take always intersection यानी common with the case. So it is 0. तो final solution is what? Your cases was like this. तो common क्या है आपका केस? ये means x belongs to 0 2. But ये एक ही केस है. सेकेंड केस, when x is smaller than 0, x smaller than 0 है तो मॉड ओपन होगा माइनस x से, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दें, x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2. x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2 मीन्स ए माइनस 2 से लेकर, बट केस का ख्याल रखना है. केस क्या है हमारा? x स्मॉलर देन 0. हेयर सपोज इट इज 0
तो केस वाज दैट x is smaller than 0 and when we have the solution must satisfy it with your case was x is smaller than 0 यानी केस कह रहा है कि इधर से 0 से उधर आप नहीं जा सकते और our solution was that this one यानी दोनों का कॉमन बात मानना है तो x belongs to -2 to 0 means this is the solution, this is also the solution. So combined it here -2 to 0 और फिर कंटिन्यू करता है 0 से 2 तो कंबाइंडली हम लोग क्या लिख सकते हैं x belong to simply -2 to 2 देखिए -2 से 0 तक आया और ये वाला केस कह रहा है कि ये वाले केस से जो सोल्यूशन आया वो है 0 से 2 so we can combine this so our final solution is -2 so when someone says x is smaller than equal to mod we need not to solve by the lengthy process it was for making understand how simply x belongs to -1 to so I am going to write some important when mod x is equal to a it becomes solution is x is equal to plus minus a second thing when mod x greater than equal to a it becomes x belongs to look carefully minus infinity to minus a union a to infinity third case when mod x is smaller than equal to a x belongs to minus a to okay ये तीनों बात आप जल्दी बना सकते हैं इससे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं सपोज वी हैव टू सॉल्व x माइनस मॉड अंडर x माइनस 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 y ओनली 2 लेटेस्ट 4 फर्स्ट मेथड क्रिटिकल वैल्यूज क्या है इस एक्सप्रेशन का 1 तो फर्स्ट केस इज x ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव एंड यू सॉल्व बाय लेंथी प्रोसेस यू विल गेट द आंसर बट दिस आर द कैलकुलेशन फॉर 12th और योर कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव सो मैंने अभी बताया आपको कि when we have mod x smaller mod x ही नहीं मैंने x लिखा है बट mod एक्सप्रेशन आप लिख लो mod when we have mod expression smaller than equal to a what is the answer is expression belongs to minus a से मैंने बताया आपको सिंपली बस सॉल्व कर लेते हैं इस क्वांटिटी को mod x smaller than equal to 4 so expression what is the expression mod x x minus 1 अंदर के एक्सप्रेशन की बात कर पहले x के लिए आंसर लिखते थे अब x minus 1 के लिए लिख रहे हैं ये क्वांटिटी बिलोंग करेगा -4 से 4 ओके बट ऑब्वियसली वी आर सॉल्विंग फॉर x नॉट फॉर x minus 1 हमें तो x का आंसर देना होता है इट मींस x minus 1 जो है -4 से 4 लाई करता है सॉल्व कर दीजिए ये -1 उधर भी ट्रांसफर इधर भी ट्रांसफर करेंगे +1 इट बिकम्स -3 और जब इधर जाएगा तो 5 तो आवर आंसर इज x बिलोंग्स टू -3 से 5 डोंट टेक टू मच टाइम आई एम टेकिंग because I have to make you understand only आप यही पे सॉल्व कर सकते हैं टेक्निकली लुक इफ इट वाज mod x अगर अंदर केवल x होता तो आंसर होता -4 to 4 लेकिन यहाँ पर x से 1 कम करा है अगर x से 1 कम करा है तो आपको वहां जोड़ना पड़ेगा तो -4 में भी आपको जोड़ आप फाइनल आंसर लिखते ना इफ mod x was अगर यहाँ पे होता तो आप सिंपली लिखते x belongs to -4 से 4 जैसे मैंने आपको बताया बट यहाँ पर x -1 है मतलब एक कम करा है तो आपको अब एक जोड़ देना है सपोज x -2 स्मॉलर देन इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर इफ इट वाज x अंदर अगर x होता तो हमारा आंसर हो जाता ऑब्वियसली x belongs to -5 to 5 बट यहाँ पर -2 है तो माइनस है तो आप प्लस कर दो यहाँ पे +2 यहाँ पे +2 क्या हो जाएगा ये x belongs to -3 to 7 बस that's all suppose mod x -3 greater than equal to 1 obviously अगर ये x होता x के लिए सॉल्व कर रहे होते अगर ये x होता सिंपली mod x greater than equal to 1 तो क्या आंसर होता x belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity बट यहाँ पर x ना होके x -3 है तो आप कुछ नहीं करना यहाँ इन्फिनिटी में तो कुछ जोड़ घटा सकते नहीं है रिटेन सेम बट यहाँ पर आपको यहाँ पर -3 है तो आपको +3 कर देना है सो आवर आंसर विल बी +3 कर दो यहाँ +3 और यहाँ +3 आंसर विल बी -infinity to 2 union 4 to infinity ये बार बार आपके 12th में तो 12th में भी बार बार आएंगे जो इंटरमीडिएट वाले बच्चे हैं उन भी ध्यान से देख ले इसकी यूज बार बार आएगी सो दैट्स ऑल फॉर मॉडुलस